Good morning to all of you. Am I audible? Yes, Hello. ma'am. Yeah. So yesterday we saw some startup, how we start, what schemes comes under startups, right? As unicorn, we have seen how many people are invested and how they get their how they success in the startup. Today we have seen up to the point startup funding options. We have also seen SCBI. So what is SCBI and what SCBI role play in startup? So SCBI is the Security Exchange Board of India, right? Everyone know what is SCBI, SEBI, है ना? आप लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा सेबी का. Yes or no? So SCBI means Security and Exchange Board of India. What do to provide easier exit option for informed investors like angel investors. है ना? They have just option to all like shares है ना, जितने शेयर्स है मार्केट में वो जस्ट इंस्टॉल कर देते हैं कि भाई ताकि लोग उसे अट्रैक्ट हो एंड दे बाय द शेयर. सो वेंचर कैपिटल फंड्स आर देयर. सेबी बोर्ड टू परमिटेड लिस्टिंग ऑफ SMEs in institutional trading platform, right? And without having to make an IPO. Means बिना IPO के मतलब listing company have right to make an IPO ना. बट या इस बार क्या क्या सेबी ने कि उन लोगों को वेंचर कैपिटल स्पेशली एसएमई वालों को भी उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया कि यस यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एनी आईपीओ. फॉर्मेलिटी होती है वो, आप बिना आईपीओ के क्या कर सकते हो, अपना मार्केट में सेबी बोर्ड में रजिस्टर कर सकते हो. सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिलैक्स द नॉर्म्स ऑन एलिजिबिलिटी एंड लिस्टिंग criteria on the innovators growth platform IGP, right? So what is the growth platform means? ग्रोथ करने के लिए, एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, उस कंपनीज को आगे रिक्रूट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए उन्होंने न्यू इनोवेटर्स का प्लेटफॉर्म ओपन किया एंड दैट इज कॉल्ड इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP. So SEBI renamed the accredited investors as innovators growth platform investors. So IGP is a separate exchange venue for startup. Separate exchange venue for startup, and the objective is to provide relaxation in these norms is to make the IGP more accessible to companies given the evolving startup ecosystem, right? So ecosystem will start like sophisticatedly, right? So everyone come to one platform and they so distribute their skill, ideas, thoughts, or whatever, and only one platform for everyone. So that is the objective. Means no one, no cheating, no ditching, no in not no competition is there, no issue. But purpose is come together and you start your business, support your business, share your ideas, share your thoughts regarding that, right? What innovator growth platform aims? What is the main aim of innovator growth platform? That is to provide technology oriented companies. What it is? To provide technology oriented companies or startup with early stage investor.
right? So an opportunity for listing within a simple framework compared to the main board. So means जितने भी टेक्नोलॉजी है, number of technologies, so all technologies we need to and skills, training, opportunity come together and make a simple framework. Means like that ki all expert come together, so it's create a new invention, right? So that is the framework compared to main based BSc, Bombay Security Exchange and National Security Exchange, and it starts from 1st April 2021. So, and it's a listed group. IGP is a listed group, and that is Innovator Growth Platform for startup. Now, Securities and Exchange Board of India, before this change, right? IGP, when they start IGP, Innovator Growth Platform, the time a company want to list on IGP, right? First they list on IGP and need to have 25% of pre-issue capital held by जैसे हम लोग पहले से कैसे एडवांस बुकिंग करके रखते हैं, so that kind की pre-issue capital held by eligible investors for 2 years, and after new changes, the changes comes, so after new changes the investors can hold pre-issue capital for 1 year before list. ठीक है, तो उसके बाद जब लिस्टिंग हो जाएगा तो आफ्टर दैट दे विल इशू द कैपिटल और शेयर. So before, the pre-issue shareholding of such investors for meeting eligibility was considered for only 10%. कितना? 10% के हिसाब से आपको वो shareholding मिलेगा. And there is, after new changes, the pre-issue shareholding of such investors increased to 25% will be considered for meeting eligibility norms. उसके जो भी norms, clause, ethics, whatever it has, it will be applicable for that purpose only, right? Now next, the Securities and Exchange Board of India allow the issuer company to make discretionary allotment, or to make discretionary allotment up to 60% of the issue with a lock-in period of 30 days. How many days? 30 days on such shares. So SEBI means Security Exchange Board India only allow those company who make dictionary allotment of 60% of lock-in period. Means 60 days तक आपको वो पैसा रखना है, आपका पैसा 60 days तक क्या होगा? लॉक रहेगा. The companies are allowed to issue superior voting rights, equity shares to the promoters or founders to list under the IGP framework, right? So IGP framework के अंडर में, IGP means Innovator Growth Platform के इसमें. Now the SEBI has relaxed the stipulation for triggering open offers to companies listed under the Innovative Growth Platform from 25% to 49%, right? So 25% to 49% triggering means वहाँ पे क्या हुआ था? इन्वेस्ट हुआ था, कंपनी लिस्टेड हुई थी, तो उसके अंडर में 25 to 49% listing shares. So SEBI has also lessened the delisting norms and allowing companies to delist or mitigate from the Innovate Growth Platform to the main board, right? So National Exchange Security means National Stock Security जो थी and Bombay Stock Exchange. So इनको मिला के उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था ताकि अदर पीपल्स, those have interest, those invest, they
bill. Now motivation for SEBI for these relaxations, so what it is, the new norms by the SEBI make it easy for the startup to go for listing and raise fund, right? So the new norms, they form new norms by SEBI and make it easy for the startup to go for listing and raise fund. How to raise fund? Day by day, they just thinking about it, how they raise the fund, right? Now, yes. So in recent month or in coming month, several domestic startups have opted to list in US and Singapore markets because of their friendlier listing norms and multiple listing options, right? So they have multiple listing options. They have because अदर कंट्रीज में भी ये सब चल रहा है, तो अदर कंट्री के लोग भी इंटरेस्टेड थे, दे हैव इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर. The relaxations provided in listing regulations by the SEBI will encourage domestic startup and companies to go for listing in domestic market instead of foreign markets, right? So domestic market, they have to they actually they encourage, right? So both market, domestic market, foreign market, wherever they have to go. But and at least what happened, those who don't have knowledge of market, but that platform, when they come, that platform means IGP platform, innovative growth platform. So they know knowledge, they know what is SEBI, BSE, NSE, and now we have seen at the time of pandemic, people invested their money on shares and someone get too much benefit, someone is not. तो वहां पे जब पैंडेमिक था तो मार्केट का सिचुएशन कैसा था? ओवरऑल काफी अच्छा था, है ना? मींस अनइमेजिनेबल था. आज अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो नेक्स्ट वीक में उसका वैल्यू क्या हो रहा था? ग्रो हो रहा था, राइट? सो दैट इज, सो इट्स कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स, राइट? अगर वैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ, मैं मेरे पास स्कीम्स है, बट नो वन इन्वेस्ट ऑन दैट स्कीम. सो व्हाट आई जस्ट किसी को पकड़ के मैं उसको वो स्कीम समझाऊंगी, वो मार्केट में जाके उसे ये करेगा, और मैं किसी को वो भी और किसी को बताएगा, वो मार्केट में जाके सेल करेगा. सो दैट इज राइट. सो इससे भी क्या हो? यस, ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए होती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, आप भी कर सकते हो इसमें. ओके मैम. पीएससी की जितनी भी स्कीम्स है, एनएससी की जितनी भी, एसएबी की जितनी भी स्कीम्स है, वो मतलब 18 एज से लेके, है ना, 15 से 18 एज से लेके एचएफ से लेके कितने भी लोग कर सकते हैं. इसमें कोई ये नहीं है, सिर्फ उसमें नाम आप ही का होगा ना, आपके नाम से है ना वो सारी चीज. जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके नाम से होगा, आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, दैट इज मस्ट. अभी जो आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हो, सीनियर सिटीजन ने क्या किया है, आके इसे सपोर्ट किया है ना? जिनके पास फंड था, फंड रेजिंग के लिए हम लोग सीनियर सिटीजन के पास जा रहे. जैसे व्हाट एक्चुअली हैपेंड, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो मैंने क्या स्कीम निकाली कि यार अभी जो रिटायर पर्सन है, रिटायर पर्सन मीन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और रिटायर हो चुके, तो उनके पास पैसा बहुत होता है, तो मैं उनसे मिलके उनके फंड को, उनके रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप ये स्कीम में इन्वेस्ट करिए. उनको तो मुझे बेनिफिट देना ही है ना? तो मैं क्या करूंगी, उनको 8%, 10% के हिसाब से वो स्कीम में उनको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लगाऊंगी. और जब वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो वही पैसे को मैं 12 या 13 या 14 या 15% से मार्केट में सेल करूंगी. आई बात समझ में? सो नॉट ओनली लाइक दैट कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है. दिस इज द आइडिया हाउ वी रेज आवर फंड्स, ताकि दोनों भी काम हो सके. व्हाट इट. सो उन्होंने क्या किया कि चलो अभी ये सीनियर सिटीजन से कौन बात अच्छा कर सकता है, तो उन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स शुरू किए मार्केट में
कि विजिट कर करके घर घर में या फिर जहाँ पे भी है उनसे बात करो, और उनके पास जो बल्क में पैसा होता है ना, ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलता है, पीएफ मिलता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो वो भी सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूँ। और उनको क्या चाहिए रहता है, जो सीनियर सिटीजन है तो उनको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए रहता है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। सो दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्कीम्स, ताकि उनके पास भी पैसा आए, मार्केट में भी वो पैसा चला सके और लोगों को भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे सके। दैट इज सो ऑफ द एजेंट एंजल इन्वेस्टर कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका? द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर वेंचर रिसर्च एंड ऑल्सो अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, देखा, of New Hampshire. So William Wetzel coined the term angel investor in 1978. So after completing a study on how entrepreneurs raise capital for business, सबको लगता है कि हमारा भी बिजनेस होना चाहिए, हमारा भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा स्टार्टअप या मार्केट में कुछ होना चाहिए, लेकिन नौकरी कर रहे होते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि आप यहाँ पे हो अभी तो आपके पास पैसा नहीं है, आपको एजुकेशन लेना है और कुछ तो करना है। सो व्हाट यू डू, अभी से आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटा छोटा, नॉट ओनली लाइक दैट, ओनली मंथली 1000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करके रखने हैं। कब तक? 20 years तक, है ना। फिर मान लीजिए आपको जॉब लगेगा, आप ये करोगे, लेकिन उसे रखना है, मतलब एवरी मंथ करना ही है। वो पैसे को ऐसे समझ कि नहीं बाबा, वो कभी तो भी आएंगे काम में, ठीक है। फिर जब आप आफ्टर 20 35 40 45 एज के भी हो जाते हो, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, अभी काम नहीं करना है, कुछ करना है, सो वो पैसा आपके कभी भी काम आ सकता है। या फिर ऐसे कोई ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे कोई ग्रुप का आप मेंबर बन सकते हो, लाइक दैट आईजीपी, एसीबी, है ना। उनके बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं कि दे नीड ऐसे पर्सन जो वर्क कर सके। ऐसा नहीं है कि वो पूरा आपको डोनेट करने के लिए बोलते, नहीं, ऑन दैट बेसिस वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं ना। अगर मार्केट में 8 या 9% से होंगे तो आपको 10% से देंगे। अगर आपको वो 10% से दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में वो 14-15% से सेल करेंगे आपका मनी। गॉट इट? दैट इज द प्रोसेस। सो पैसा एवरीथिंग है, तो आप भी उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उससे क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, है ना। तो भाई मंथली अगर आपको, आपका पैसा तो वही है, कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन उसी पैसे को इन्वेस्ट करके या किसी को दे के आपको अगर महीने के 20-25 मिल रहे हैं तो यू हैप्पी। फिर से उसमें आप उसी स्कीम को चालू करिए। अभी आप 1000 रुपए से कर रहे थे, अभी 5000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इतना तो किसी को लगता है ना, महीने का 25,000 तो कोई खर्चा नहीं करता होगा, मतलब सिंगल पर्सन। फैमिली की बात अलग है, ठीक है। सो इंडिविजुअली हम लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के थ्रू, एंटरप्रेन्योर के थ्रू गवर्नमेंट ने स्पेशली लोगों में, स्पेशली रूरल में, अर्बन में, जहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उन लोगों को एक करके उनको ये स्कीम समझाई, और पैसे कैसे बचाते हैं। तब लोगों के पास अकाउंट्स नहीं थे, गॉट इट। अभी सबको अकाउंट्स दे दिए हैं। इवन आपने देखा वेजिटेबल वाले के पास भी है, तो वो भी अभी भूखा नहीं मरता, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे है ना। पहले क्या होता था, पैसे आते थे, कहाँ जाते थे पता नहीं चलता था, लोग खरीदते नहीं थे। अभी मार्केट बहुत एक्सपांड हो गया है। सो अभी छोटा सा छोटा बच्चा भी है तो भी उसके पास मनी रहता है। तो द मेन मोटो ऑफ दैट स्टार्टअप इज कि गरीबी हटाओ, ये तो था ही, बट क्या था कि जो भी गरीब है ना, जो भी गरीब है उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनका सेविंग करना, उनका डेवलपमेंट करना। कैसे? थ्रू पॉलिसी, थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करो छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पे। तो उनके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने ये किए। अभी बहुत सारे लोग शेयर से डरते थे कि नहीं यार, शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, शेयर में नहीं, बट उन्होंने ये भी प्लेटफॉर्म उनके लिए स्टार्ट कर दिया आईजीपी का, सेबी के थ्रू, कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप छोटे छोटे शेयर्स ले सकते हो, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आप भी वहां से पैसा कमा सको। अब उनके लिए भी म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स वहां पे स्टार्ट की है। Let me see. So he used the term to describe the investors who supported startup business with seed capital. Means थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, तो उससे, लॉटरी तो सबको नहीं मिलती ना, एक ही किसी एक को ही मिलती है। तो थोड़े पैसे आने से उसका
बिजनेस ग्रो कर सकता है या नई टेक्नोलॉजी कर सकता है या उसे कोई एजुकेशन देना है तो वो एजुकेशन दे सकता है, ठीक है। सो सिलिकॉन वैली इज द होम ऑफ modern angel investors and also home to the largest number of startup in the United States. Silicon बहुत बड़ा ग्रुप है। So if you get a time then just read about that Silicon Valley, right? And ये कहाँ का है? यूएस का। What is angel investors? How funding there? So angel investors can be a professional such as doctors or lawyers, farmers, business associates, or better yet, so seasoned and entrepreneurs interested in helping out of the next generations, है ना। जैसे हम लोग आपको बोलते हैं कि आप फ्यूचर हो, इंडिया का फ्यूचर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाई करके पैसा कमाना नहीं है, तो इंडिया के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, जहां आप रहते हो उस एरिया के लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है ना। जहां पे भी आपने पढ़ाई की है जहां से, तो वहां से आपको क्या मिला है? ज्ञान मिला है। तो उस ज्ञान के बदले में आप को भी हक है कि आप भी वहां पे कुछ तो कंट्रीब्यूट करें, उस संस्था से जुड़े। जैसे आपका स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे या पढ़ते आए हो या पढ़ाई की है, तो उस स्कूल में से जुड़ जाइए। मत दीजिए ज्यादा, 1000 रुपीज, तो उससे क्या होगा? एज अ मेंबर आप होंगे, आपका स्किल उनके काम आएगा, जो आपने सीखा है, आपका एक्सपीरियंस उनके काम आएगा जो आपने उन्हें दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे सकते हो, बिकॉज हमारा जो बॉन्ड है वो सिर्फ लेने के लिए नहीं है, देने के लिए, हम कुछ करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो हमें, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। आप जितना दोगे उतना आता जाएगा, जितना दोगे उतना आता जाएगा, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे आपका ट्रेनिंग हो, चाहे आपका स्किल हो, चाहे आपका मनी हो, चाहे एनीथिंग हो, ठीक है। तो देने से ही मिलता है, दैट इज द बिग बिग कंसेप्ट। नॉट, ये कंसेप्ट नहीं ये, लेकिन ये कहावत है कि यस, देने से मिलता है, राइट। सो एंजल इन्वेस्टर्स में भी उन्होंने डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, इन लोगों को क्या किया? जोड़ लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, हम लोग ये फर्म ये करें, क्योंकि गरीब तो कोई है नहीं, राइट, देखा जाए तो बस लोगों ने बोल बोल के गरीब कर दिया। गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उनसे ज्यादा ये करवाना, बट अभी वो कंसेप्ट ही नहीं रहा। इसीलिए सबको एक करके उनको हम कैसे सपोर्ट सकते, उनकी फैमिली को हम कैसे सपोर्ट करते हैं, है ना। सो दैट इज द थिंग नाउ। और बेटर इट सीजन entrepreneur interested in helping to the next generation. They are wealthy and willing to invest in startup business in return for a piece of the achievement. चाहे ये एक एज में ना सबको लगता है कि यार मैंने पढ़ाई की, मम्मी पापा थे, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया मेरे मम्मी पापा ने, इसलिए आज मैं ये स्टेज पे पहुंचा हूँ, है ना। फिर आपको नहीं लगता है, लेकिन एक स्टेज पे आपको लगेगा कि पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, आज मैंने ये किया, फिर मैं पढ़ाई की, फिर मुझे अच्छा जॉब मिला, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, मेरा, मैं सेटल हो गया, घरदार, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ जी ली, आपको जो चाहिए था मिल गया लाइफ में, है ना। आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ, बट उसमें से नॉट ओनली 10%, 5%, 4% आपको किसी और को देना है। किसी के एजुकेशन के लिए दीजिए, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए उसके लिए दीजिए, है ना, किसी को फूड में दीजिए। तो आप कंट्रीब्यूशन जितना आपसे होगा आप उतना कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया, दे आर वेल्दी विलिंग, और ये तो खुशी से हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास हो तो हम लोग खुशी से देते हैं, है ना। सो दैट इज द थिंग। So SEBI guidelines for angel investors, what it is. So angel investor to get and registered with SEBI, and angel investors earn between 60,000 and 1 lakh a year. कितना कमा रहे थे वो? $60,000, 60,000 से लेके लाखों रुपए वो कमा रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन, है ना, कि भाई ठीक है, तो इससे दिला मैं तुझे 2% दूंगा, तो उससे दिला मैं तुझे 2% दूंगा। ट्रांसफर इज एवरीवेयर, ठीक है। तो वो क्या कर, मतलब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे एक अंकल है, रिटायर हो चुके हैं, सब एकदम मस्त फैमिली से थे,
बच्चों को पढ़ाया, हमें भी काफी सपोर्ट किया उन लोगों ने, मतलब वो अंकल ने काफी अच्छा एवरीथिंग। जब वो एक स्टेज पे आए, सबकी शादी वादी हो गई, उनको पैसा मिला, तो वो पैसा उन्होंने एक साथ सभी जगह नहीं इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने हर साल वो हर साल वो अपने जो भी पेंशन का परसेंटेज है ना, 50% अपने पेंशन का 60,000 मिलता है, तो उसका 50% वो डोनेट करते हैं। और ये उन्होंने डिसाइड किया था कि व्हेन आई वाज रिटायर, आफ्टर दैट व्हेन he will get a pension, so after that I will donate 50% ऑफ अमाउंट। वो एजुकेशन के लिए देते हैं, वृद्धाश्रम के लिए देते हैं, चैरिटी करते हैं, बहुत इधर उधर वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनका। सो दैट इज द थिंग। तो उनसे भी लोग जुड़ते हैं कि यार हमारा ये काम कर दो, हम आपको 2% देंगे, तो वो कमीशन बेस पे वो जुड़ गए हैं कि ठीक है ये कमीशन यहाँ से आएगा क्या, फिर ठीक है ये मैं यहाँ पे डोनेट कर दूंगा, अच्छा वहां से 2% आया क्या, अच्छा चलो ये यहाँ पे दे दिया। तो ऐसे भी लोग हैं जो वॉलेंटरीली वर्क करते हैं, स्वेच्छा से काम करते हैं, ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ऐसे ही नहीं चल रहे है कि नहीं। तो ये लोग हैं जुड़े हैं अच्छे अच्छे इससे, जो लोगों में पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजों को इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन पैसा होना चाहिए, पैसा हो तो, और ये सब उसी को करना आता है। पैसा मार्केट में चलाना बड़ी बात नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है, सबको नहीं चला सकते, कोई तो लोग के डूब भी जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जाते हैं 5 लाख रुपए लेके और कुछ भी हाथ खाली हाथ लौट आते हैं। सो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए जहां आपको ग्रो मिल रहा है, दैट इज। सो एन एंजल फंड शैल हैव अ purpose of at least 10 crore rupees. So but now this limit decreased 5 crore rupees. अभी उन्होंने 5 करोड़ कर दिया, पहले 10 थी। Now the maximum period for accepting fund from an angel investor is increased to 5 years from 3 years. 5 से 3 साल के लिए ही आप वहाँ पे पैसा रख सकते थे। Now it was proposed to replace the requirement of filing of scheme memorandum of of term sheet containing material information as may be specified by SEBI. So regarding the scheme to SCBI within 10 days of launching scheme. जो भी उन्होंने स्कीम लॉन्च किया है उसके अंडर वो सारे रिक्वायरमेंट्स, उसके सारे फॉर्म्स फिल अप करने होते हैं, सारे एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट वी नीड टू सबमिट देयर। सो बिगेस्ट हर्डल्स फॉर, उसके लिए बिगेस्ट हर्डल्स क्या था फिनटेक में, फिनटेक इंडस्ट्री में? सो दैट इज एब्सेंस ऑफ एनेबलिंग रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। उसका जितना बड़ा काम आप कर रहे हो उतना आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका अकाउंट्स, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारी चीजें मेंटेन करनी चाहिए, कंप्लायंसेस भरने चाहिए, टीडीएस टैक्सेस यू नीड टू पे। सो इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज एंड मॉडल्स, है ना, 12% बहुत सारे लोगों को आइडिया मिल गया। अभी क्या हुआ, छोटी छोटी फर्म जैसे रूरल में उन्होंने सेबी का तो नहीं कर सकते, तो वो रूरल में उन्होंने एजेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करना चालू किया और उन लोग को उसके बेनिफिट मिलने चालू हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग फिर मार्केट में आ गए फाइनेंशियली, है ना। देन स्केल अप कैपेबिलिटीज ऑफ इनोवेशंस प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चालू हो गए। एक्सेस ऑफ 10 एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरियल एंड प्रोफेशनल स्किल्स 10.13%. then orientations and perspective funding players. so ऐसी स्कीम्स वहां पे स्टार्ट होना चालू हो गई। सो इंडियाज फिनटेक सेक्टर टू ग्रो एट 20% बाय 2023। ऐसा कहा गया था कि 2023 में 20% इंडिया का फिनटेक जो है ऑल स्टार्टअप वो ग्रोथ होगा। Now what is fintech? In 2020 India has overtaken China as Asia, right? So top financial technology, so market and emerged as the world's second largest fintech hub, trailing only the US, right? So India is experiencing the fintech boom. India के पास बहुत था क्योंकि
बहुत सारा एडवांस स्किल टेक्निक बहुत सारा था, और उसके थ्रू वो लोगों को, अपने पास पॉपुलेशंस भी है, नो इशू, तो ऐसे उन्होंने फिनटेक को बूम किया. Fintech is used to describe a new technology that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. So fintech space include digital payment, digital lending, bank technology, insurance technology, registration technology and क्रिप्टो करेंसी. ये तो हमने देख ही लिया कि अभी हम 22 में हैं, तो और ड्यू टू दिस कोविड हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. बहुत सारे लोगों ने पेमेंट, जीपे, गूगल पे, ये सारा सीख लिया है ना. अभी अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है. कोविड ने हमें बहुत सिखा दिया. सो दैट इज द क्रिप्टो करेंसी भी आया था बीच में, अभी वो सक्सेस नहीं हुआ, बट कमिंग ईयर्स वो सक्सेस होगा मे बी. अभी उस पर तो बहुत बड़ा व्याख्यान है. So active areas of fintech innovation where it is, so cryptocurrency and digital cash. डिजिटल कैश, अभी तो हम लोग वैसे भी कैश बहुत ही रेयर यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है. जैसे मुझे अगर किसी को 5,000 देने हैं, मुझे कैश निकालने नहीं है, मुझे सिर्फ अकाउंट में से ट्रांसफर करना है बस. मैंने देखे क्या नहीं, मतलब सब डिजिटल करेंसी चल रहे हैं. सिर्फ हम लोग अमाउंट को देख रहे हैं, व्हाट इट इज 5,000 एंड ट्रांसफर कर दो भाई, है ना. सो पहले कैसा था, कैश आती थी, गिनना पड़ता था, 3-3 4-4 बार, हाथ दुखते थे, ऐसे मजा आता था. लेकिन वो ऐसे कैश काउंट करने में कट 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 फटफट फटफट ऐसे. अभी तो वो टेक्निक ही गया. अभी सब, अभी चिल्लर भी बहुत ही हम लोग कम यूज करते हैं. ऑटो रिक्शा, कहीं पे भी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, फूड खाना है, जूस पीना है, ड्रिंक, वेयर एवर वी गो वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट. सो इट्स अ बिग बैश comes due to this pandemic or what and whatever Indian policy decided in 2023. Till 2023 we have achieved 20% target of startup, and they achieved more than achieved. I think they achieved 35 or 50% target, because n number of people know how to use. A lot of people connect to this platform. Everyone, सबने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एवरीवन. ठीक है. सो क्रिप्टो करेंसी भी आया है मार्केट में, बहुत चला था बीच में. अभी मार्च अप्रैल मई में, मार्च स्पेशली जनवरी फरवरी मार्च में बहुत चल रहा था. वन ऑफ माय फ्रेंड, वो गवर्नमेंट जॉब पे थी मेडिकल में, तो उसने मुझसे कहा कि यार मैं जॉब छोड़ रही हूँ. मैंने पूछा क्यों, तो बोले नहीं, मुझे क्रिप्टो करेंसी में काफी इंटरेस्ट आने लग गया है, और काफी मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की है, वो मुझे काफी पैसा दे रहे हैं, तो तुम भी इन्वेस्ट करो. ऐसा उसने मुझे सजेशन दिया था. मुझे अच्छी बात है, करो. सो blockchain technology that maintain record on a network of computer but has no central ledgers, राइट. सो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी है. ब्लॉकचेन दैट मेंटेन रिकॉर्ड्स, है ना. अभी डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड सारे मेंटेन होते हैं. आपने इधर पैसे ट्रांसफर किया, आपका एंट्री हो जाता है ना. आपके अकाउंट से विड्रॉ नहीं हुए तुरंत. पहले क्या होता था कि अगर हमारे अकाउंट में से किसी गलत अकाउंट में पैसे चले जाते थे, तो 8 दिन लगता था अकाउंट में वो रिफंड आने के लिए, राइट. बट अभी इमीडिएट आ जाता है. इवन आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करते हो, है ना, तो आपने 2 दिन आपके अकाउंट में वो से कि यू विल रिटर्न रिफंड विद इन 7 days, बस 2 दिन में आ जाता है. तो कितना चेंजेस, कितना स्पीड, कितना वास्टली काम कर रहा है डिजिटाइजेशन. क्यों, तो पीपल को वो चांस ही नहीं दे रहा है कंप्लेंट का, है ना. किसी को वो कंप्लेंटिंग का चांस नहीं दे रहा है. सो दैट वाज गुड, वेरी गुड. नाउ स्मार्ट कॉन्टैक्ट. सो अभी ग्रुप में आपको, आप किसी को जानते भी नहीं हो, है ना, तो भी आपको कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है. जिस ग्रुप में आप जानते नहीं हो उसमें भी. तो इतने स्मार्ट कॉन्टैक्ट अभी लोगों को मिलने लग गए हैं, और अभी लोग व्हाट्सएप पे भी न्यूज मैसेजेस पढ़ने लग गए हैं कि क्या है, राइट. सो स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स लाइक विच यूटिलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, often utilizing blockchains, everything. Now, open banking, a concept that leans on the blockchain and poised that third parties should have access to bank data to build applications that create a connected network of financial institutions and third party providers. थर्ड पार्टी में भी आप
काम कर सकते हो, जैसे आप मेन है, आप ने तो किसी और को दे दिया तो उसके थ्रू आपको बिजनेस मिल रहा है, दैट इज गुड. एक्टिव एरियाज ऑफ फिनटेक इनोवेशन, राइट. सो फिनटेक इनोवेशन में एक्टिव एरियाज क्या था, तो इंश्योरटेक, ठीक है, इंश्योरटेक था, which seeks to use technology to simplify and streamline the insurance industries. इंश्योरेंस से कनेक्ट कर दिया, अभी बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस है. रेकटेक हो गया, which seeks to help financial service firms meet industry compliance rules, especially those converting anti-money laundering and know your customer protocols which fight fraud, है ना, ताकि फ्रॉड नहीं हो. आपको केवाईसी अभी कंपलसरी कर दिया है, ये सारी चीजें कंपलसरी होने से फ्रॉड कम ही होगा. देन साइबर सिक्योरिटी अभी काफी इंक्रीज हो गई है, गिवन द प्रोफाइल ration of cybercrime and the decentralized storage of data, cyber security and fintech are intertwined. तो इन्होंने अभी बस ये इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको कोई शिकायत का मौका ही नहीं देंगे वो, है ना, गलती होगा ही नहीं, एरर आएगा अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो, लेकिन वो गलत एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, राइट. तो वो भी आपको छोड़ दिया, आपको इंस्टेंट उसने मौका ही नहीं, होता नहीं, कंप्लेंट आ रही है चलो तुरंत सुधारो, right. So robo advisors, so using algorithms automate invest advice by lowering the cost and increasing the benefit. So ऐसे इससे क्या हो रहा है कि वो लोग भी एडवाइस दे रहे हैं, उन लोग को भी समझ में आ रहा है कि कहाँ से गलती, और कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर वो गौर कर रहे हैं, उसे रिजॉल्व कर रहे हैं. What opportunities comes related to fintech? The driving financial inclusion in India. कैसे इस रन करें हम ओवरऑल इंडिया में, कैसे लोग इकट्ठे आकर इस बिजनेस को ग्रो करें. सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एमएसएमई, enhancing customer experience and transparency and user of fintech technology, and due to this startup people connect each other, और पैसा आने लगा है मार्केट में अभी, क्योंकि उन लोगों को जोड़ा गया है जिनके पास पैसा है लेकिन वो कहीं से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर अच्छा काम के तौर पे जोड़ने के लिए बोलो तो वो जुड़ जाते हैं और विलिंगली वर्क करते हैं. सो दैट इज नाउ यूजिंग यूजर फिनटेक टेक्नोलॉजी में बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू क्लाइंट्स, B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू क्लाइंट, ये उन्होंने प्लेटफॉर्म रखा. नाउ प्रीपेड पेमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, पहले प्रीपेड करते थे हम लोग, जैसे ट्रेन में है. सो टाइप्स ऑफ PPI, व्हाट इज प्रीपेड पेमेंट मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट. According to RBI, PPI in the country can be issued under 3 systems. They are as follows. So closed system. The closed system is system where the PPI that is issued is only valid when used against purchases from the entity which issued in the first place. Okay. So first place they have issued. Then PPI will not accepted to purchase item from different provider, and this system also does not allow कैश विड्रॉवल, ठीक है, कैश विड्रॉवल आपको अलाउ नहीं है, एंड अमाउंट दैट इज स्टोर्ड इन PPI. नाउ PPI डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है, RBI का अप्रूवल रिक्वायरमेंट है. नाउ पेपर वाउचर्स और गिफ्ट वाउचर्स and coupons, right. So it also will include smart cards that can only be used in the establishment that issue them, such as metro rail cards and chips, whatever जो भी है उसमें वो लगेगा. तो पहले मिलते थे ना छोटे छोटे. Now semi closed system, what it is, unlike PPI issue under the closed system. So prepaid payment of India's issue under the semi-closed system can be used multiple establishment but not all. So बैंकिंग जो है RBI ने इसे अप्रूव कर दिया था कि ताकि मल्टीपल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो लोगों को भी खरीदने में मजा आएगा. जैसे कोलगेट, बहुत सारी वेराइटी है ना, अगर एक ही रहता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था. एक ही प्रोडक्ट कोलगेट आज भी उतना ही चलता था तो फिर प्रॉब्लम, लेकिन अभी उसके इतने सारे n नंबर ऑफ आ गए हैं कोलगेट में, तो चॉइस, तो काफी कंपटीशन और मार्केट में क्राउड भी बढ़ गया है कि क्यों नहीं अवेलेबल है ना, इसका भी ऑप्शन है.
So PPI cannot be issued without the prior approval of authorization of the RBI, and they can be used for purchases or remittance facilities. मतलब सारी, अभी तो प्रीपेड का सिस्टम नहीं है, बट फिर भी वो दे रही थी. एंड स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट विद द इश्यूर ऑफ पीपीआई टू एक्सेप्ट पीपीआई पेमेंट. भाई चलो अभी नहीं है किसी के पास ऑप्शन, तो पीपीआई थ्रू पीपीआई वी हैव टू यूज इट. Now directly between the issuer and the establishment except in the PPI. So PPI issue under the SEBI Pro systems are not allowed to facilitate cash withdrawal. So this is irrespective of whether the PPI is issued by the bank or not. ठीक है, बैंक के थ्रू वो देना है या नहीं देना है. Now prepaid payment mechanism in India. What it is? Open system. It's an open system. कोई भी आप प्रीपेड कार्ड, वीजा कार्ड उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसके लिए आरबीआई ने आपको अप्रूवल दे दिया है, तो कार्ड के थ्रू पेमेंट करो. सबके पास अभी कार्ड होता है ना, कहीं पे भी जाना है तो आप कार्ड यूज करो. एक छोटे अमाउंट का बैलेंस आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो. तो उन्होंने कैश विड्रॉवल कर सकते हो, है ना. तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया प्रीपेड का. अभी तो सब, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें यूज करना होता है ये. So types of semi-closed PPIs is the minimum detail PPI loading only from bank account and fully KYC PPI. So मोबाइल नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओटीपी उसमें आता है, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें. और लिमिट जो रखी है 10,000, मतलब गांव गांव में भी उन्होंने, रूरल एरियाज में भी उन्होंने ये सारी चीजें दे दी. क्रेडिट कार्ड की चीजें, एक फार्मर्स का क्रेडिट कार्ड आता था, ठीक है, तो वो भी उन्होंने कस्टमर्स को दे दिया, मतलब सबको इशू कर दिया कोविड के सिचुएशन में. सो दैट इज गुड फॉर एवरीवन ना. सो मतलब अभी सबके पास वो सारी चीजें अवेलेबल रहने लगी. नाउ सेम प्रोसेस लाइक मिनिमम पीपीआईज, सबके पास 10,000 के एक्सीड की लिमिट है. देन लोडेड फाइनेंशियल ईयर का ये सारी चीजें हैं. आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो तो उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो वो भरना पड़ता है. तो वो सारी प्रोसेस आपको पता है, राइट. और केवाईसी तो जरूरी है. द अमाउंट आउटस्टैंडिंग शैल नॉट एक्सीड ₹1 lakh. So any point of time there are no limits prescribed for total credits or debit during the month. वो डिपेंड ऑन योर बैलेंस फंड कितना है. आरबीआई का क्या रोल था इसमें? आरबीआई का रोल यही था कि लोगों को पैसा अवेल हो इजीली. और 2005 से आरबीआई ये पेमेंट में से जुड़ी हुई थी ताकि पीपल क्या करे, कनेक्ट हो और उनसे कांटेक्ट कर सके. सो इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड रेमिटेंस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड विद इन और ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स. सो अ कंपनी means any company incorporated in India and registered under the Company Act 1956, Company Act 2013 and company operate participate in a payment system for issuing PPIs to individual organizations. तो उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से कांटेक्ट करके उन्हें इस स्कीम से जोड़ना चालू किया. नाउ कंडीशन फॉर इश्यूर ऑफ पीपीआई, व्हाट इट इज, द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड द मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹5 करोड़, है ना. जो भी कंपनी स्टार्ट होना चाहती है तो उसका 5 करोड़ चाहिए. ₹1 करोड़ ऑल टाइम. और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑल बैंक विच comply with the eligibility criteria and fulfill this criteria regarding this mobile banking transactions, पेटीएम, एटीएम सभी दे दिया है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या है कि ओनली टू इशू पीपीआई अंडर द सेबी क्लोज और क्लोज सिस्टम फॉर पीपीआईज. Expanding role of automation and digitization. So digitization increase 14-13% in 3-5 years. Yes, ये तो जरूरी है. ये भी तो we are agree कि in this coming year we have seen कि 14 से लेके 30% तक digitization grow हुआ है. So the project inputs India's growth rate higher than the global and Asia specific average. ठीक है, एशिया के स्पेसिफिक एवरेज में भी वो ग्रोथ हुआ है. Now growth and artificial intelligence and information technology. So क्योंकि वही तो हमें स्ट्रॉन्ग करना था ना, एआई और आईटी. अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी मिल गई ना, अगर वो ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने से, सिक्योरिटी मिलने से सारे ट्रांजैक्शन, सारी चीजों का टेंशन जो था वो क्लियर हो गया. अभी आप कार्ड पेमेंट से, सारी चीज, कोई भी चीज से आप पेमेंट कर सकते हो कैश छोड़ के,
है ना, लेकिन बैंक में अकाउंट मस्ट है, राइट। So यहाँ पे दिया है the coronavirus pandemic has expedited and re-emphasized the need of automation across the globe. So there is growing interest in adopting both for process discovery, intelligent data capture and cloud native boost across sectors. So that is 60%, 95 to 80% recent time it increased fundraise, right? So COVID world and India was well placed to capitalize on the fast growing robotic process automation. So there are more than 42,000 hyper intelligent automations, right? तो इतने ग्रोथ हुए हैं मार्केट में। स्ट्रेटजीज और एडॉप्शन, अभी आप सभी लोग कैमरा के अंडर होते हो, है ना, कोई तो भी आपको वॉच कर रहा होता है, कोई तो भी आपको देख रहा होता है, मतलब सारी सारी चीजें ये हो गई। पहले तो एक जगह कैमरा लगाना बोले तो बहुत बड़ी बात होती थी, अभी तो घर घर में कैमरे लग चुके हैं, ठीक है। सो और इट्स इजी ना कि भाई अगर आप घर पे नहीं हो, आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन है तो उसका केयर नहीं हो रहा है, आपने कैमरा लगा दिया तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, कौन है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, सारी चीजें अभी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो स्मॉलर कंपनीज टेंड टू प्रीफर अ मोरेटोरियम और deferred payment scheme, so whereas larger organizations are choosing pay as you use cloud services, right? So that is the booster. So organizations that had already invested in automation are carefully expanding their use of bots. Now sector growing in artificial intelligence and IT information technology में क्या था कि BSI सेक्टर मींस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो हो गया अच्छे से, हेल्थ केयर सेक्टर भी ग्रो हो गया, सपोर्ट सर्विस सेक्टर ग्रो हो गया एंड अदर सेक्टर्स भी ग्रो हो गया, जैसे एजुकेशन, टेलीकॉम, गवर्नेंस, रिटेल, ऑटोमेटिव, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक अमंग द कीज। अभी आपके कार पे भी टैग लग गया है ना, आपको टोल पे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फास्ट टैग है, आप जा सकते हो। सो कितना इजीली कर दिया है, मतलब, और इसके पीछे द बिग 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 सपोर्ट ऑफ आईटी एंड बोट, आईटी एंड AI, artificial intelligence, right? So the four pillar of the destination is like that. First, it is the productivity, experience, revenue, and profit. So both it is most and competency means that is requirement actually. So data and analytic competency is a big data. So उन्होंने हर एक डाटा तो हमारे पास था, सोर्स तो हमारे पास बहुत था, लेकिन उस सोर्स को हमने अभी प्रॉपर वे से यूज करना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योरिटी मिलने लग गई है, और सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है उतना ज्यादा आदमी का ट्रस्ट होता है, और जितना अच्छा ट्रस्ट होगा उतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मिलता है। Transformation of traditional enterprises to an intelligence enterprises. So what it is? So traditional enterprises is RPA, OCR and CR is there, chatbot, voice bot. So ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ गई है ना। तो आप, मैंने हमेशा बोला है साइबर के लेक्चर में भी कि सारी चीजें पता चल रही है, हर एक की पर्सनल इंडिविजुअल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, ऑडिट डिपार्टमेंट हो, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे, है ना। तो हर जगह पे वो ऐसे सिस्टम्स उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं कि अगर कुछ भी हो जाता है तो हमें वो पता, हम देख सकते हैं, ऑपरेशंस को भी हम देख सकते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी मार्केट में आई है, और वो क्यों आई है? तो इन चार चीजों की वजह से। सो फंडिंग रेज हुआ, ये सारी सिक्योरिटी, ये सारी सुविधाएं आने से लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से लोग अभी क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो शिफ्टिंग प्रायोरिटीज फॉर artificial intelligence adoptions, increasing productivity, improve process efficiency, digital transformation, automation and adoptions, need to cut costs, employee upskilling and future sustainability, improve technology infrastructures, need to be better prepared for risks, responding to regulatory change, simplification, the need to reduce complexity in business, merger acquisitions हो गया है, need to exploit opportunities for growth, need for cultural changes. So a number of changes क्या हो गए हैं, दिखना चालू हो गया. So that is the startup of India, our fourth unit which we have completed today. Okay, so बहुत सारी schemes हमने देखी.
कैसे आया फिनटेक के थ्रू, आरबीआई ने कैसे सारे स्कीम्स लॉन्च की एंड 2022 यार, सो कितना ग्रोथ हुआ, सो वी इजीली काउंट दैट ग्रोथ. एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसको कुछ पूछना है? यस. और आगे भी और क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, वी डोंट नो, बट वी आर अवेयर अबाउट इट एंड टू मच एक्साइटेड. स्पेशली आई एम टू मच एक्साइटेड टू लर्न दैट थिंग्स, टू कंप्लीट दैट थिंग्स, क्योंकि इन सब चीजों में, इनोवेशंस में क्या हो रहा है ये हमें तो पता नहीं होता है, बट जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर लगता है कि यस, कुछ तो अच्छा है. पहले हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते उससे, इन सब चीजों से, बट फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें भी वो इजी लगने लगता है, राइट? यस. एनीवन वांट टू आस्क एनी? नो क्वेश्चंस? ओके देन. नो मैम. ओके देन, कल प्रोग्राम है कॉलेज में, सबको आना है, ठीक है? सब अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो डिसेंट फ्रेंड्स है, अच्छे हैं, आप उनको लेके आइए. मतलब अच्छे, हाँ, अच्छे मतलब जो कॉलेज में बैठ सके, राइट? यस मैम. 8:30 मतलब 8:30. किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम. ओके, गुड. गुड गाइस, चलो. हाँ, हेलो. आज शाम को ना आपका रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? इवनिंग में मैसेज डालूंगी मैं. वैसे तो आज आपका रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं होगा. मंडे को सारे लेक्चर्स ऑन टाइम पे होंगे, ठीक है? यस मैम. यस. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे.